भारत ने इसराइल को 20 बमबार ड्रोन तैयारे दे दिए हैं। गजा वालों की जो नस्लकुशी की जा रही है इसमें भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कोई छोटी खबर नहीं है दोस्तों। भारत जानबूझ के कूद रहा है इस जंग के अंदर, जो कि इसको नहीं कूदना चाहिए। इसराइली फौज जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है ना, वो मोदी का भेजा हुआ गोला बारूद है, भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हुए, डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम किया है। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं, मजबूरी है, ये नहीं देने चाहिए थे। अब जरा भारत, उसके अपने मसाइल तो खत्म हो। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो अमेरिकी जंगी साजो सामान है, ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना, वहां से फराहम किया जा रहा है। और इसराइली फौज को आप ये देखें कि 20 हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है, ये फराहम किए गए हैं और इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इसराइल गजा पर हमले करता है। नरेंद्र मोदी ने जो है उसको F-20 दिए हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो ड्रोन दिए हैं, जो कि उसको नहीं देने चाहिए थे। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবরটা বেরিয়ে আসছে কিন্তু পাকিস্তানের প্রোপাগান্ডার তরফ থেকে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা জানেন ভারতে ভোটের টাইম এগিয়ে আসছে আর এটাকে নিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে চরম শোরগোল, বিভিন্ন রকমের প্রোপাগান্ডা আর বিভিন্ন রকমের ফেক অ্যাকাউন্ট বানিয়ে ভারতের খেলাফ হিংসাত্মকমূলক কথা থেকে শুরু করে হিংসাত্মকমূলক ভিডিও সমস্ত রকম পাবলিক পোস্ট করছে। যাই হোক, এখন আসি মেন টপিকে। আপনারা জানেন এখনো ইসরায়েল আর জঙ্গি হামাসের মাঝে যুদ্ধ চলমান। খবর বেরিয়ে আসছে এটাই যে ভারতের তরফ থেকে হারমিস ড্রোন 20টি নাকি পাঠানো হয়েছে। এমনকি পাকিস্তানি কিছু পত্রকার এটা পর্যন্ত দাবি করে বসেছে যে ভারত নাকি F-22 র্যাপটারকে পর্যন্ত ইসরায়েলকে দিয়েছে। আমি বুঝে পাই না এরা পত্রকার না ফেক প্রোপাগান্ডার একটা ভান্ডার। ভারতের কাছে ভাই F-22 কবে আসলো? এটা তো আমরা জানি আমেরিকার। যাই হোক, ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা শুনতে পাবেন তাদের কথাবার্তাগুলো। এবার আসে মেন টপিকে। যে হারমিস ড্রোনের কথা বলছে সেটা ভারতের ভেতরে তৈরি হলেও এটা কিন্তু ভারতের নয়। আমি আপনাদের আগেও বলে দিই, এটা ভারতের ভেতরে তৈরি হচ্ছে, ইসরায়েলি কোম্পানি তৈরি করছে। তাই যদি এখানে কেউ ক্লেম লাগায় যে ভারত ঘাতক ড্রোন বা অর্থাৎ মিসাইল বা বোম বহনকারী ড্রোনকে যদি ইসরায়েলকে সাপ্লাই করে, সেটা ওদের ড্রোন, ওরাই বিক্রি করছে, ওরাই সাপ্লাই করছে, এখানে ভারতের কোনো হাত নেই। এই বিষয়টিকে নিয়ে এখন পাকিস্তান লাফাচ্ছে যে এই যুদ্ধে ভারতের হাত দেওয়ার বা ভারতের লাফানোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এমনকি পাকিস্তান এটা পর্যন্ত মানতে স্বীকার হয়েছে যে আজকের দিনে ভারত ইসরায়েলকে ভাই হিসেবে দেখে। আর এর রিজন কি সেটা আপনারাও জানেন, ওনারাও জানে। তাই সেটা তারা প্রকাশ্যে না বলে তারা এটা বলতে চাইছে যে ভারত ইসরায়েলকে ভাই হিসেবে দেখে, তাই ভারত ইসরায়েলকে মিসাইল থেকে শুরু করে, গোলাবারুদ থেকে শুরু করে, বোম থেকে শুরু করে সমস্ত রকম সহায়তা করবে। আর আমি ওপেনলি বলছি এটা করাটাও স্বাভাবিক, কারণ একটা সময় ছিল যে মুহূর্তে আমেরিকা আমাদের সহায়তা করেনি, সেই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের খেলাফ গিয়ে ইসরায়েল আমাদের সহায়তা করেছিল। তাই সেই দিন বা সেই ঋণটাকে আমাদের শোধ করার বা সুযোগ এসেছে। তাই আমরা চাই যে এখন প্রকাশ্যে না হলেও ব্যাকফুটে ভারত ইসরায়েলকে সমস্ত রকম সহায়তা দেওয়া, কেননা আমাদের সময় এসেছে সেই ঋণকে শোধ করার। যাই হোক বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটা তো দেখে নিন। इस वक्त भारत पहुंच चुका है अपने F-20 हथियारों के साथ, जो कि उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन मैं जरा आपको यहाँ ये भी याद करवाना चाहूंगी कि जब हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को निशाना बनाया तो नरेंद्र मोदी ने खुद इसराइली वजीर आज़म उसे टेलीफोन किया था, उसे फ़ोन किया और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मैं कहती हूँ कि दुनिया को मोदी के इस संगीन जुर्म का अब नोटिस ले लेना चाहिए, अब नहीं तो कब। मैं कहती हूँ अब ये वक्त लगाम डाली जाए, वरना कोई भी महफूज नहीं होगा। खबर ये आ रही है कि इसराइल की मदद फिलहाल इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है, दो तरह से कर रहा है। इंडियंस इसराइल को अपना भाई समझते हैं क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे रीजन है जिसका आपको पता है। खैर नाजरीन, हुआ यह है कि अब इंडिया बाकायदा तौर पे इसराइल को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। इसराइल को जो मात पड़ी है ना, वो ईरान के कामाकाजी ड्रोन से पड़ी है। कामाकाजी ड्रोन जो ईरान का है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। हिजबुल्लाह ने भी वही ड्रोन इस्तेमाल किया और इसकी इसराइल की फैंटी लगाई है। अब हो ये रहा है कि इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इंडिया के पास वो एक अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो अब खबर ये आई है कि इस वक्त जो रफा बॉर्डर पर हमला किया गया है, उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, इनफैक्ट जो गजा में हो रहे हैं ड्रोन इस्तेमाल, वो मेड इन इंडिया किलर ड्रोन्स हैं। वो इनका बाकायदा नाम ही किलर ड्रोन्स है, जो कि मेड इन इंडिया है। अब हुआ ये है कि इसके साथ साथ जो है द सेल ऑफ मोर देन 20 हर्मिस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs delivered to Adani Albit Advanced Systems India Limited to Israel was the first reported on February 2 by Neelam Matthews for the defense related website Shepherd Media। यानी इन्होंने 2 फरवरी से
बाकायदा तौर पे इसराइल को सेल का काम, इसराइल को हथियार पहुंचाने का काम इंडिया ने शुरू कर रखा है। इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन। अब इंडिया जो है देखें, पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना, हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, ये जो जितने हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, मैंने अगले दिन आपको एक वाक़या बताया था, मैं जानता हूँ उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे और उनको कुछ लड़कियों ने कहा, एक या दो किसी मार्केट में लड़कियाँ खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इजराइल का झंडा है, इस पर टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज़ हैं, नॉट पीपल ऑफ अदर नेशनैलिटी, जो सऊदीज़ हैं उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया। जो है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन, ये अकॉर्डिंग टू देम के दैट इज़ द दे आर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड हो, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। एक लॉबी बनी हुई है, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज कुछ हो गए, दे एक्चुअली फुली सपोर्ट इसराइल। तो अगर तो इसके अलावा अगर इंडिया तो एक एशियन कंट्री है, तो यहाँ से कुछ लोग गए हैं, अमेरिकन जो है ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए वहाँ से जो है कुछ लोगों को वहाँ पे भेजने का ऐसा उनका तुक नहीं बनता है, बिकॉज वो एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन सर इसराइल की अगर हम बात करें तो अगर उसको बहुत सारी इस्लामिक कंट्री ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, तो उनके पास ऑप्शन भी बहुत कम बचती हैं, जिनमें से एक अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया के लिए उनकी बहुत जो अच्छी और सूटेबल ऑप्शन है इंडिया इसराइल के लिए। इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इजराइल काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल भेजा है, और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके इजराइल के लिए कंट्रीब्यूट करें, काम करें। और हमारी पोजीशन ये है कि यहाँ पे चाइनीज़ भी भागते हैं, यहाँ पे श्रीलंकन भी भागते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल के अंदर हमास और इजराइल की जंग हो रही है। जो पैलेस्टीनियन लेबर्स जो थी, जितनी भी थी, वो सारी शट डाउन हो गई, निकल गई वहाँ से और वो चली गई बहुत ज़्यादा। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी, इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए, काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ इस पर ज़रूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए। क्या ये सिर्फ जहाद 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 इस चीज़ ने पकड़ के ये पाकिस्तान की जिन्होंने कहते हैं ना जड़ें बैग है। যাক বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো দেখুন। পাকিস্তানি মিডিয়াতে এই সমস্ত পত্রকারদের কথা শুনে আমার অনেক হাসি পায়। ভারত নাকি F-22 র্যাপটারকে ইসরায়েলকে দিয়েছে। আমি এখনো পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না যে F-22 র্যাপটার ভারতের কাছে আসলোই বা কবে থেকে, যেটা তো আমেরিকার। যাই হোক বন্ধুরা, এবার আপনারা বলুন, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের তরফ থেকে ভোট যত সামনে এগিয়ে আসছে তত কিন্তু বিভিন্ন রকমের ফেক টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশিদের মতন বিভিন্ন রকম ফেক প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। তাই এই সমস্ত বিষয়গুলো থেকে আপনারা একটু সতর্ক থাকবেন। দেখেই কিন্তু আপনারা কোনো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আপনারা অনেক সময় কনফিউশন পড়ে যান যে এটা আদৌ ইন্ডিয়ান না পাকিস্তানি। যাই হোক, সেই সমস্ত রিপোর্টের উপর রিপোর্ট করে কিছু পাকিস্তানের পত্রকার আবার বড় বড় আর্টিকেলকে ছেপে তারা ভিডিও পর্যন্ত পাবলিশ করে দেয়, যেটা নিজেদেরই বানানো, নিজেরাই গল্প করে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চায়। যাই হোক বন্ধুরা, পুরো বিষয়টার উপর আপনাদের কি মতামত? এই মুহূর্তে ভারতের কি উচিত নয় সমস্ত রকম ভাবে ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়া? অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। ভিডিও আর ইনফরমেশন ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।